جی معزز خواتین و حضرات، ہمارے محترم سامعین و ناظرین، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کی جانب سے ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے جو مہمان اور میزبان ہیں۔ قبل اس سے کہ میں ان کو آپ کے روبرو لاؤں، بس یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ پروگرام جس کا آپ بھی شدت سے انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ وہ علمی ادبی پروگرام ہے جس میں نہ صرف ہم نے ہند و پاک، بنگلہ یا خلیج ممالک، بلکہ اردو کی جہاں جہاں بھی بستیاں آباد ہیں وہاں سے ہم نے شاعر، ادیب، محقق، نقاد، اسکالرز آپ کے روبرو لائے اور علم اور ادب کی باتیں ہوئی ہیں۔ انہی پروگراموں کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے، اور علم ہو یا ادب یا پھر ہم کہیں گے کہ شاعری ہو یا کوئی افسانہ یا ناول، یہ ہمیں ایک دوسرے سے ملاتا ہے۔ تو کیوں نہ آج ہم چلیں پاکستان کی سرزمین کی اور، جہاں سے آج ہمارے ساتھ ہیں ہماری مہمان، اردو ادب کی ہمہ جہت شخصیت، جی ہاں شاعرہ ہیں وہ، افسانہ نگار بھی، ناول نویس بھی، شہناز نقوی صاحبہ۔ جی ہاں، کھیلوں سے بھی دلچسپی رکھتی ہیں، بنیادی طور پہ ملتان سے ان کا تعلق ہے لیکن آج کل لاہور رہ رہی ہیں۔ تو میں انہی کے ساتھ جو آج کی میزبان ہیں پرتیما سنہا صاحبہ، ممبئی میں مقیم ہے آج کل، اور بہترین علم اور ادب کی وہاں بھی خدمت ہو رہی ہے۔ تو میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ آج کی میزبان اور مہمان دونوں کو آپ سب کے روبرو لاتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں شہناز نقوی صاحبہ آپ کا اپنے اس پروگرام میں، اور پرتیما سنہا جی آپ کا بھی۔ اور میں چاہوں گا کہ آج کی اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض آپ ہی انجام دیں گی، اور میں چاہوں گا جی کہ شکریہ، آپ استقبال کیجئے اور پروگرام کا آغاز کیجئے۔ بہت بہت شکریہ عرفان صاحب۔ تحریک بقائے اردو کے سبھی سامعین کو، ناظرین کو میں آداب کہتی ہوں، السلام علیکم۔ اور پاکستان سے ہمارے روبرو ہیں محترمہ شہناز نقوی صاحبہ، ان کا بھی بہت بہت دلی خیر مقدم، خوش آمدید میم ہمارے اس پروگرام میں آپ آئیں۔ اور جیسا کہ بتایا عرفان صاحب نے کہ جہاں جہاں اردو کی بستیاں ہیں وہاں وہاں ہم پہنچ رہے ہیں، پہنچنے کی ہماری کوشش ہے، اور اردو کی خوشبو تو ہر جگہ ہے، ہم وہاں تک پہنچ جائیں اسی میں ہماری کامیابی ہوگی۔ تو ہمارے بالکل پڑوس میں ہمارا جو ایک دوستانہ ایک رشتہ ہے علم اور ادب کے ذریعے، اس ملک سے آپ ہم سے مخاطب ہیں، تو ہماری جانب سے ہمارا سلام آپ قبول کیجیے۔ اور پہلا سوال آپ کو، عرفان صاحب نے آپ کا تعارف تو دیا ہے کہ آپ شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، آپ نے ناولز بھی لکھے ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ کی شخصیت کی ہیں جس کو ہم سوال کے طور پہ آپ سے پوچھیں گے اور اس کا جواب ہم اپنے سبھی ناظرین کے لیے لیں گے۔ میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ سنا ہے کہ آپ کا تعلق ہندوستان سے بھی ہے اور کچھ شاخیں جو ہیں وہ ادھر بھی آتی ہیں، ملتان کی طرف بھی جاتی ہیں، تو یہ سفر کیا ہے، کیسا ہے، اس کی ابتدا کیا تھی، اور اس بارے میں تھوڑا ہم کو آپ مختصر میں ہی صحیح لیکن آپ بتائیں اپنی شروعاتی زندگی کے بارے میں، ابتدائی تعلیم اور تربیت کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ تمام ممبرس کا، اور اس پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ اور تعلق تو بہت گہرا ہے، دنیا کے چاہے کسی بھی گوشے میں کوئی بسیرا ڈال کے بیٹھا ہے، ایک جڑے ہوئے ہیں انسان اور رشتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اب گلوبل ولیج دنیا کو، لیکن میرا خیال ہے کہ جب سادہ زمانوں میں قافلے جو جایا کرتے تھے، جو ہجرتیں ہوتی تھیں، تب بھی گلوبل ولیج تھا لیکن ایک پروسیس سلو تھا۔ تو ہمارے جو بزرگ تھے وہ ایران سے عرب کی طرف، عرب سے افغانستان سے ہوتے ہوئے پھر ہندوستان میں داخل ہوئے، اور وہاں سے پھر کچھ وہیں رہ گئے، کچھ یہاں آ گئے، آباد ہو گئے۔ میرے بزرگ جو تھے وہ لدھیانہ سے میری والدہ کا تعلق ہے، اور ان لاز کا تعلق جو ہے وہ سادات جگراؤں ہے، لدھیانہ کا شاید ایک تحصیل تھی، اب ضلع ہوگا۔ اور
मेरे वालिद समाना रियासत पटियाला से हिजरत करके पाकिस्तान आए थे और वो मुख्तलिफ जिंदगी में कम्बिनेशंस बनते हैं मुकद्दरों से जो, और वो बेटियां बनाती हैं जब ब्याह के जाती हैं दूसरे खानदानों में, और ये सिलसिले फिर चलते रहते हैं, फिर वो एक हो जाते हैं, फिर फैल जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। बस इसी तरह से मैं देखा करती थी, बहुत मुशाहिदा करती थी बचपन में कि दादी का कल्चर और है, वालिद की जबान कुछ और है, वालिदा की कुछ और है। जो लोग फिर लखनऊ में रहे, ग्वालियर में पोस्टिंग्स रही, वो लोग वहां से हिजरत करके आए, उनका लबो लहजा उनका कुछ और। फिर हमसायों में देखा करते थे, कोई बिहार से आए हैं, कोई अलीग हैं तो अलीगढ़ से आए हैं। इस तरह से मेरा बचपन अब मुशाहिदा करते ही गुजरा। ये अब मैं ऑब्जर्व करती हूँ ये बातें, तो मैं सोचा करती थी कि हम एक जगह रहते हैं और ये डिफरेंस क्यों है ये, लेकिन वो जवाब वक्त ने दे दिए फिर। लेकिन ये है कि तालीम मेरी प्राइमरी सेक्शन वही मुल्तान में तालीम थी मेरी, और वालिद बड़े मॉडरेट सोच के थे। हालांकि मेरे दादा ऐसे नहीं थे, वो बहुत बापर्दा और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, और बस लेकिन वालिद उसके बिल्कुल वाइस वर्सा। उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में और जो भी एक्टिविटीज स्कूल्स में होती थी वो उसमें हिस्सा देने के लिए, फिर कॉलेज लाइफ में पिक एंड ड्रॉप करना बड़ा एनकरेज करते थे। क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लू बर्ड भी थी, हमें वेलफेयर के छोटे छोटे काम बच्चों को सिखाया जाता था उसमें। फिर मैंने कहीं तकरीर करनी है या कोई नज्म पढ़नी है, उसके लिए मुझे गाइड करना, मुझे इशारे बताना बहुत बचपन में। कुछ दादा दादी का माहौल भी था, क्योंकि वो उनका एजुकेशन से बहुत ताल्लुक था कि वो वाइस प्रिंसिपल थे हिजरत के बाद यहाँ फेडरल स्कूल के। और दादी बाकायदा अखबार पढ़ती थी, हालांकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो अखबार पढ़ती थी और रेडियो सुना करती थी, खबरें, म्यूजिक नहीं वो सुनती थी। मेरी वालिदा फिर जब हुई तो शायद ब्याह के आई और मैंने उनको देखा कि वो म्यूजिक भी सुना करती थी। दादी जान फौत हो चुकी थी, वो कल्चर थोड़ा सा चेंज हुआ। वालिद ने मुझे मतलब गर्ल गाइड भी बनवाया, फिर उसमें तकारीर करनी, फिर कॉलेज स्पोर्ट्स में पिक एंड ड्रॉप करना, फिर लिखने लिखाने के लिए, क्योंकि हमारा मुल्तान अभी इतना उस जमाने में 70-80 के सन में वो इतना कोई मॉडर्न नहीं था। वहाँ 2-4 खवातीन थी जो सहाफत से रेडियो से मुंसलिक थी। तनवीर ज़हरा जाफरी थी वो रेडियो पे, हुमैरा इखलाक कंपेयर थी हमारे हमसायों में से गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान में। फिर एक नौशाबा नरगिस सहाफत में थी, इमरोज अखबार की खवातीन एडिशन। ये बच्चियां, ये बाजियां मेरी जो रोल मॉडल थी, मैं देखती थी कि अगर ये कोशिश करती हैं तो जो मेरे जहन में चीजें आती हैं वो मैं भी लिख सकती हूँ, मैं भी इनको भेजूं। वो घर वालों से चोरी फिर भी मैंने ये सब कुछ भेजा, लिखा, और वो शाया भी हुआ और मैं बड़ी खुश हुई। मेरा पहला अफसाना फर्स्ट ईयर में मैंने 79 में लिखा था, याद माजी। अब मैं सोचती हूँ कि 17-18 साल की बच्ची का माजी होगा क्या, मैंने इतना वो लिखा कि याद माजी, मैं खुद हैरान होती हूँ। लेकिन शायद वो 1700 साल 1400 साल का सफर था जो रगों में आ रहा था, खून में, और वो सारा एक वो मैंने बहुत ही खूबसूरत बात है, वाकई में बहुत खूबसूरत बात है। तो इसी तरह फिर हौसला किया कॉलेज लाइफ में। फिर नातिया हमें था वो शायरा, तो उसमें मिसरा तरह दिया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। क्या बात है, वाह। इकबाल साहब का मिसरा हो तो वाह। तो वो नहीं, अब मजे की बात है कि हमने तो 9th-10th में उर्दू गजलें शुरू की थी ना पढ़नी। उसके अलावा घर में जो डाइजेस्ट आते थे वालिद के या अदबी रसाइल आते थे वो पढ़ा करते थे, तो वो भी अम्मी से छुप के पढ़ती थी। पढ़ने का शौक दादा दादी से आया, कुछ असातिज़ा ने कंपटीशन में डाल दिया कि इसमें आप हिस्सा लें और ये करें, और इस तरह से मैं बहुत लेती थी बचपन में हिस्सा, और वो वालिदा और वालिद मेरे सपोर्ट करते थे। बस इसी तरह वो चलता रहा सिलसिला। ये मेरी लक है कि मुझे घर से असातिज़ा से सपोर्ट बड़ी मिली, और कुछ मेरे अंदर फिर लगन थी उसमें, क्योंकि बाकी बहन भाई लिटरेचर से उनको नहीं है कोई इतना शगफ,
वो इस चीज को वक्त का ज़िया शायद समझते हैं, मटेरियल और मादी चीजों में ज्यादा। तो अब जब एफए के बाद शहनाज मैम, मैं आपसे एक बात अब पूछना चाहूंगी, एक सवाल के तौर पे, क्योंकि सारी बातें हमें एक किसी और तफसील की तरफ ले जाती हैं, और खास तौर पे जब आप जैसे लोग सामने हो तो बहुत कुछ जानने का मन करता है। आपने दो चीजें बहुत ही खूबसूरत कही हैं और जो हमने महसूस भी की हैं, कि अगर घर से आपके वालिदैन का सपोर्ट हो और आपके असातिज़ा का सपोर्ट हो आपकी जिंदगी में, तो बहुत आगे तक आप जाते हैं, और खास तौर पे खातून के लिए ये दोनों बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और आपको वो मिला, आपको वो विरसे में वो चीजें मिली जो एक मुकम्मल शख्सियत के बनने के लिए होती हैं। आपने एक जिक्र किया अफसाने का याद माजी, तो मैं बस ये मुझे बीच में दिमाग में बात आई कि क्या हम जान सकते हैं कि आपको याद है कि आपने लिखा क्या था उस अफसाने में? आपने क्या लिखा था उस अफसाने में? क्या था, कि क्या टॉपिक था उसका? उसमें यही था कि गांव का माहौल है, हालांकि मैंने अच्छा गांव देखा भी नहीं। अब वो इमेजिनेशंस देखे इतने स्ट्रॉन्ग थे कि ट्रेन के सफर में जो रास्ते में गांव आते होंगे वही देखे होंगे। मुल्तान से लाहौर ही आते थे और तो कभी कहीं गए नहीं। वो तो फिर शादी के बाद सिविल ऑफिसर से शादी हुई और सारे पाकिस्तान में पोस्टिंग्स हुई, वो तो बात की बात है, लेकिन गांव ही देखे होंगे ट्रेन के जरिए, वैसे नहीं देखे, लेकिन वो गांव का पस मंजर था। और उसमें जो लड़की है वो जैसे हमसाए होते हैं हर स्टेटस के, गांव में तकरीबन एक ही थोड़ा बहुत ही फर्क होता है, इतना नहीं होता समाजी हवाले से। तो वो एक बच्चा है, वो पगडंडियों में चल रहे हैं, उछल कूद रहे हैं और खेल रहे हैं और स्कूल भी जा रहे हैं। और तो वो एक किरदार से उसको उन्स हो जाते हैं और वो एक सिलसिला डेवलप हो जाता है मोहब्बत का और वो चल रहे हैं। तो वो लड़का जो है वो उसको फिर एफएससी के बाद एडमिशन मिल जाता है शहर में और वो शहर चला जाता है और वो लड़की वहीं उसी माहौल में, उसी एक सादा सा और गरीब सा माहौल, उसी में रह रही है, अपने रोजमर्रा कर रही है। उसकी फिर फुफ्फो कहती हैं कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है कुछ सीखने का तो सिलाई कढ़ाई का या कोई भी हुनर सीख लो, तो मैं तुम्हें शहर ले जाती हूँ अपने साथ। वो अपनी फुफ्फो के साथ जब शहर आती है, जिस कोठी में वो ठहरे हुए हैं, ये अब काफी साल उसमें बीच में बीते हैं, कुछ 5-6 साल। तो वो जब डस्टिंग कर रही होती है फुफ्फो के साथ उसी घर की कोठी में, तो वो जो एक बड़ी तस्वीर शेल्फ पे पड़ी है, तो वो उसको कहीं कुछ देखी हुई लगती है, महसूस होती है। वो उसे देखती है और बहुत, लेकिन वो ख्याल झटक देती है कि वो तो पता नहीं डॉक्टर बन के पता नहीं कहाँ का कहाँ दुनिया, अब गांव वालों के लिए तो दुनिया बहुत बड़ी है कि कहाँ निकल गया होगा। लेकिन जब वो दोपहर में घर वापस अपने आते हैं जॉब से वो डॉक्टर, तो वो उसको देखती रह जाती है कि बिल्कुल वही शबी है, ये तो वही है। और उसके मुंह से उसका वही निकनेम निकल जाते हैं। वो निकनेम अब मुझे नहीं याद कि वो निकनेम उसका निकलता है, तो वो उसको देख रहा है और वो कितना वक्त बीत गया, वो उसी क्लास में बैठी है और वो कहीं का कहीं बन गया हिजरत के बाद। और एक तरह ये था। अच्छा, इसको मैंने दोबारा लिखने की कोशिश की, वो कुछ और ही अलमिया, वो कुछ और ही कहानी बन गई, वो लिखा गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। वो जो एक सच्चा और एक सादा सा एक कच्चापन रहा होगा उस उम्र का, और वो जो नयापन रहा होगा बाद में आप बनाते रहें तो भी नहीं बन पाता है, वो हम समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अदीब, एक कहानी लिखने वाला, एक अफसाना लिखने वाला जो शख्स होता है, जो अदीब होता है, वो उसका तसव्वुर कितना गहरा होता है कि जहाँ गए नहीं, जिस चीज को देखा नहीं, जिससे गुजरे नहीं, उसको भी वो लिख सकता है। और शायद यही ऊपर वाले की दी हुई जो बरकत होती है एक राइटर के पास। जी बिल्कुल। और एक मैं थोड़ा सा लतीफा ही कह लें इरफान, ये डिप्टी नजीर अहमद की कहानियां मैंने पढ़ी थी 10वीं की पेपर्स देके 10th क्लास के, उसके बाद टाइम फ्री मिला तो मैंने डिप्टी नजीर अहमद की कहानियां पढ़ी। उसमें कोई जुमला मेरे कहीं लाशऊर में बैठ गया। अब उस अफसाने में यादे माजी में मैंने वो जुमला भी कहीं लिख दिया। ये बात मुझे बहुत बाद में ख्याल आया, ये जुमला तो मेरा था ही नहीं
कि ये वही पगडंडियां हैं जहां नादान मन बिन पिए ही बहकने लगता है। अब ना मुझे इसका मतलब मालूम, ना मुझे इसका कुछ, बस ये जुमला अच्छा लगा और ये मैंने उसी में लिख दिया। बहुत अच्छा। यही होता है जब हम मतन को पढ़ते हैं, जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं। आजकल के हमारे जो स्कॉलर्स यहाँ बजाते हैं, हम खुद भी अगर इस बीच में रहें तो हम तनकीद की तरफ बड़ी जल्दी जो है रुजू करते हैं। असल मतन जो होता है वहां तक अपनी रसाई नहीं रहती है। हम कहानी का खुलासा पढ़ लेते हैं, कही हुई बात समझ लेते हैं कि ये कहानी बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, ये अफसाना बहुत अच्छा है, ये नावल बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे लिए खुशबख्ती ये है प्रतिमा सिन्हा जी कि आज हमारे सामने ना सिर्फ शायरा है बल्कि ये अफसाना नवीस भी हैं और नावल निगार भी। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इन्होंने नावल कौन सा लिखा है, अफसाने कौन कौन से लिखे हैं, और शायरी भी सुनेंगे। लेकिन इन तक पहले जरूर पहुंचा दें जो हमारे, मैं वही पे कहना चाह रही थी कि जो लोग जो उन तक पहुंच रहे हैं सलाम वो पहुंचा दिए जाए पहले। जी मुल्तान से इन्होंने कहा था कि वहां तक ये बात पहुंचे। तो बहरहाल प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब हैं, मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी साहब हैं, नुसरत अली खां काजी साहब हैं, और शाहिद आलम साहब हैं, कामिल जमील साहब हैं, राशिद खान साहब पाकिस्तान से, मुल्तान से ही हैं ये, और इसके साथ फैजान अहमद हैं, उसके अलावा चौधरी रफ़ीक अंजुम साहब हैं, हसन इमाम सिद्दीकी साहब हैं, अशफाक हुसैन शाद साहब हैं। ये सबके सलाम हैं, दुआएं हैं आपके लिए और खुशामदीद है। मैं इसीलिए खाली नाम आप तक पहुंचा पाया हूं क्योंकि नसीर अहमद गोरसी साहब हैं, ये सब आपको सलाम और दुआ से नवाज रहे हैं। तो हम पहले यही जानना चाहेंगे कौन कौन सी किताब है, उनके टाइटल्स अगर आपके सामने हो तो वो दिखाएं, और फिर कुछ कलाम भी हो जाए, फिर बातें और भी होती रहेंगी। जी जी, सबसे पहले 2005 में लम्हे बहार के, ये इल्म इरफान पब्लिशर लाहौर ने पब्लिश की थी। वाह। ये दूसरी बीते समय है, और तीसरी अभी जो पब्लिश हुई है लाहौर अक्स पब्लिशर ने शाया की है। ये इसमें नॉवलेट है, नील गगन तले। वाह जी, नॉवलेट है और अफसाने हैं, और जो रेडियो टीवी के लिए ड्रामे लिखे थे वो हैं। नसर को मैंने इसमें समो दिया क्योंकि पाकिस्तान में किताब शाया करवानी भी बहुत मुश्किल एक काम है। फुल टाइम लिखना भी फुल टाइम जॉब है, उसको फिर पब्लिश करवाना भी फुल टाइम जॉब है। तो मैंने तो पहले मेरी तरजीह बच्चे थे मेरे, उसके बाद मैंने ये है कि ये चीजें शाया करवाई हैं। जब 2 बेटे मेरे इंजीनियर बन गए फिर मैंने ये पब्लिश करवाई। बेटी ने भी मेरे ख्याल अंग्रेजी में एमए कर लिया है या? जी, मैं बच्चों का भी बता दूं क्योंकि ये खवातीन का जो है राइटर के हवाले से तो पहचान हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है असल पहचान जो है वो सारी मुशक्कत बच्चों के हवाले से भी एक होती है कि 3 बेटे हैं, तीनों इंजीनियर हैं और माशाल्लाह तीनों हायर स्टडीज करके साउथ कोरिया और मलेशिया से, 2 बड़े तो पोस्ट डॉक कर चुके हैं और छोटा अब साउथ कोरिया से एमएस करके अब पीएचडी के लिए अप्लाई किया और इंजीनियरिंग में। और बेटी ने एमफिल इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स किया है, बीजीयू से गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, और वो शादी के बाद ईएमई नस्ट इस्लामाबाद में पढ़ा रही हैं। यानी हम यहाँ एक नारा ये भी दे सकते हैं कि शायरों के बच्चे सिर्फ शायर नहीं होते हैं। नहीं, शायर हैं, ये शायर हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये वक्त का ज़या है। अभी आपने पहले गुफ्तगू में कहा था कुछ लोग शायरी का ज़या समझकर इस तरफ नहीं आते हैं। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं खुद शायर हूँ, मैं एक उस्ताद भी हूँ। आप शायरा हैं, अफसाना नवीस है, नावल निगार हैं, लेकिन आप बेहतरीन कलम का भी साथी हैं। प्रतिभा जी हैं, ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये जरूरी है। लोगों के लिए ये है कि वो समझते हैं कि शायरी जो है ये वक्त का ज़या है। तो आपने बहुत अच्छी मिसाल दी। इस बीच में मैं आपको बताता चलूं, डेरा गाजी खान साहब कहाँ गए हमारे? हाँ, ये राशिद खान जी हैं, ये कह रहे हैं कि मैं डेरा गाजी खान से हूँ, शुक्रिया। तबस्सुम सद्दाम तबस्सुम साहब भी देख पा रहे हैं, और संगीता रेकवार ये भी देख पा रही हैं और खुशामदीद कह रही हैं। सनी इकबाल साहब हैं, नसीर अहमद गोरसी साहब हैं। तो बहरहाल एक खूबसूरत मिसाल आप हमारे सामने हैं। तो खूबसूरत किताबों के नाम हमने पढ़े, तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त एक समा बंधा हुआ है, तो क्यों ना कुछ
कलाम हो जाए। बिल्कुल, ये इरफान अल्फाज ही तो है ना, चाहे आप नसर में लिखें, जो भी आपके पास अल्लाह की दी हुई नेमत है, ये नेमतों में से है हर्फ भी, इसको सदका जारिया समझना चाहिए। जो मैं तो जो लिखती भी हूँ, किसी कभी भी ये लिखा है तो कैथारसिस किया है, एक मेयार से लिखा है, दिल से लिखा है, नाम के लिए नहीं लिखा कभी भी। ये तो अगर हर कोई इसी तरह से लिखे ना, तो फिर इस कंपटीशन में ना रहे कि एक नाम पैदा करना है या शोहरत हासिल करनी है, फिर उस लिखे का समाज को कोई फायदा नहीं। बेशक। तो अफसाने हैं मेरे, समाजी हवाले से हैं, और नॉवलेट जो है ये रात का मुसाफिर, इसमें दरअसल तो एक समाजी अलमिया ही है, लेकिन ये सारा मैंने हिंदी असाती माहौल इसमें दिया है खास, क्योंकि बचपन में मैंने जब देखा करती थी अलॉटमेंट वाले घर, वही बर्तन, वही कल्चर, वो जो घरों में अलॉटमेंट वाले नाना का घर देखा, दादा का घर देखा, वो चीजें भी मेरे अंदर कहीं लाशऊर में बैठ गई, वही जुग्राफिया, वही सारी चीजें, तो वो निकली नहीं अभी तक, वो जहन में कहीं बैठी हैं। तो ये नॉवलेट उसी पस मंजर में है कि दो भाइयों का विरासत में झगड़ा, और नॉवलेट असल ये है उसका प्लॉट, लेकिन उसको मैंने पूरा कैलाशपुर और रामपुर, सारा ख्याली फर्जी कैलाश और विनोद और ये सारे हिंदी नेम मैंने राकेश क्रिएट किया पूरा कुछ बहुत अच्छे से। क्या बात जी, है। जी, वो क्रिएट किया है, और नॉवलेट का नाम है रात का मुसाफिर। वाह। तो मेरी कोशिश है कि ये आप पीडीएफ अपने जो दोस्त हैं पढ़ने वाले उनको भी जरूर भेजिएगा इरफान, पढ़िए। और अफसाने जो हैं ये इसमें मैंने कुछ तो रवायत के रवायती अंदाज में तहरीर की है, कुछ मैंने अपना तख्लीक कार होने के नाते हैत को फी जमाना के अबलाग भी हो, फन भी मुतासिर ना हो, उसको थोड़ा अपने अंदाज में लिखा है, तजर्बाती भी कह सकते हैं। हमारे प्रोफेसर हमीदुल्लाह खान साहब हैं, उन्होंने भी बस इसी से मिलता जुलता एक सवाल भी पूछ लिया है कि अफसाने के फनी और तकनीकी महासिन क्या हो सकते हैं। महासिन इसके, अगर आप पढ़ें और आपको एक तसलसल मिल रहा है, एक रवानी मिल रही है, और आप पढ़ के उसमें सबसे पहले मैसेज के साथ, अबलाग के साथ लतीफ एक पैगाम भी अगर आपने मिल गया है, आपके अंदर कोई फिक्र उजागर हो गई है, कोई जहन और दिल मुतासिर हो गया है, तो वो कामयाब है। उसमें तसलसल तो होना ही चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए उसमें एक, क्योंकि अफसाने और नावल में यही तो फर्क है कि अफसाना जो है एक कहानी को और एक किरदार को मुख्तसर तारुफ करवाता हुआ अपनी कहानी को बयान करता हुआ अंजाम पजीर होते हैं। नावल में आप मंजर जो जो आपको मिल रहा है, आप उन मनाजिल में वो मंजर, वो जुजियात साथ साथ चलते हैं। वो जरा तवील है, ये शॉर्ट है, इसमें थोड़ा सा ये है, तो ये जरूरी है। महासिन किरदार अच्छे हो, उसमें असलूब सबसे मुतासिर कुन हो। बहुत खूब। बाकी आपको मैं गजल आपकी समातों की नजर, इरशाद। जब कभी आंखों से आंसू बह गए, जब कभी आंखों से आंसू बह गए, किस लिए हम सोचते ही रह गए। वाह। थी लबों पे मुस्कुराहट जाने क्यों, थी लबों पे मुस्कुराहट जाने क्यों, दिल का अफसाना जब आंसू कह गए। जब ख्यालों ने किया दिल को उदास, जब ख्यालों ने किया दिल को उदास, वक्त की गहराइयों में बह गए, वक्त की गहराइयों में बह गए। जब भी अफसाना मोहब्बत का सुना, जब भी अफसाना मोहब्बत का सुना, हम को ढूंढते ही रह गए, हम वफा को ढूंढते ही रह गए। बेकरारी में न कुछ भी बन पड़ा, बेकरारी में न कुछ भी बन पड़ा, जाने तेरे सामने क्या कह गए। क्या बात।
क्या बात है, जानो मेरे सामने क्या कह दी, वाह। नाज जब जिक्रे वफा आया कभी, वाह नाज जब जिक्रे वफा आया कभी, अश्क इस दिल की कहानी कह गए, वाह बहुत खूब, जब आंखों से आंसू बह गए, किस लिए हम सोचते ही रह गए। वाह बहुत खूब। मैं देख रहा था कि आपने जहां दुनियावी बातें की हैं वहां कुछ रूहानी बातें भी की हैं। ये सवाल तो प्रतिमा ही करती रहे तो बेहतर है, लेकिन मैं आपके पोस्टर पर जो 4 मिसरे लिखे थे वो पढ़ के स्टेज प्रतिमा के ही हवाले करूंगा। सब्र की ईसार की है एक कहानी करबला, सब्र की ईसार की है एक कहानी करबला, मौत जिसकी पासबां वो जिंदगानी करबला, करबला से करबला तक है जमाने का वजूद, है अजल से ता अबद एक जावेदानी करबला। तो मैं क्या चाहूंगा बात, कि कोई सलाम भी हो जाए ताकि ये कलाम आगे बढ़ता रहे। जी जी बिल्कुल, इसी के चंद अशार और इसी सलाम के दास्ताने गम के जो लिखी गई है खून से, वाह दास्ताने गम के जो लिखी गई है खून से, आंसुओं के दरमियां रंगी बयानी करबला, वाह आंसुओं के दरमियां रंगी बयानी करबला, नाज ये जिंदा हकीकत आलमे इम्कान की, नाज ये जिंदा हकीकत आलमे इंसान इम्कान की, वक्त आजिज सामने एक लाबकानी करबला, सब्र वाह की प्यार की है एक कहानी करबला, मौत जिसकी पासबां वो जिंदगानी करबला। एक सलाम बहुत आप समातों की नजर, एक सलाम के दुनिया ने कैसे आपको करबो बला दिया, दुनिया ने कैसे आपको करबो बला दिया, दुनिया को कैसे आपने जीना सिखा दिया, करबो बला में घिर के मोहम्मद के लाल ने, करबो बला में घिर के मोहम्मद के लाल ने, इंसान को निजात का रास्ता दिखा दिया, उस रात को बुझा तो दिया था दिया मगर, उस रात को बुझा तो दिया था दिया मगर, आका ने मेरे नूर का दरिया बहा दिया, वाह जिस वक्त करबला की कभी याद आ गई, जिस वक्त करबला की कभी याद आ गई, अजनबी की आंच ने दिल को जला दिया, बहुत जो सुंदर, मुस्तफा का अलम है वो थाम कर, जो दीन मुस्तफा का अलम था वो थाम कर, अब्बास ने वफा का करीना सिखा दिया, वाह तारीख मस्क हो गई होती मगर हुसैन, तारीख मस्क हो गई होती मगर हुसैन, तारीख का तो आपने चेहरा दिखा दिया, दुनिया ने बहुत खूब, कैसे आपको करबो बला दिया, दुनिया को कैसे आपने जीना सिखा दिया। क्या बात है, क्या बात है, दुनिया को कैसे आपने जीना सिखा दिया। बहुत ही खूबसूरत सलाम और बहुत ही अकीदत से लिखा गया, पढ़ा गया, दिल तक पहुंचता हुआ। शहनाज मैम, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि आप गजल और नज्म भी लिखती हैं, अफसाने और नॉवेल भी लिखती हैं, आपके दिल के करीब कौन सा फन ज्यादा है और क्या लिखने में आपको ज्यादा आसानी पेश आती है और ज्यादा लुत्फ आता है? अफसाना, कोई वजह? अफसाना मेरा फेवरेट है, उसमें लिख के मुझे लगता है मैंने हक अदा कर दिया है, ज्यादा तसल्ली होती है, बहुत फेवरेट है अफसाना। जी, अफसाना लिखना हमेशा दिल दिमाग को ज्यादा लेता है। आपको किरदार, जैसे आपने भी कुछ देर पहले बताया कि आपने कुछ किरदार गढ़े, तो किरदार गढ़ने पड़ते हैं, कुछ फिक्शन लाना पड़ता है, कुछ तखय्युल, कुछ तसव्वुर डाल के कुछ बनाना पड़ता है। तो कभी ऐसा हुआ, एक लफ्ज होता है राइटर्स ब्लॉक,
लिखते लिखते कुछ दिमाग में रुक जाता है, अटक जाता है, कभी कभी लिखने का सिलसिला बहुत दिनों तक रुक जाता है। और एक खातून होने के नाते आपकी जिंदगी में या हर खातून की जिंदगी में ये होता है कि उसके अपने जाती मसाइल होते हैं, घर परिवार बच्चे सारे फराइज, इन सब के बीच में लगातार लिखते रहना और तमाम चीजों में मुब्तला रहना। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई अफसाना लिखना शुरू किया हो और बीच में कोई राइटर्स ब्लॉक आ गया हो, कुछ कहीं फंस गए हो, या लिखते लिखते बहुत दिनों तक कोई गैप हो गया हो लिखने में, क्योंकि आप बहुत सालों से लिख रहे हैं? तो ऐसा कभी हुआ है एक तख्लीकार के तौर पे कि आपको कहीं रुकावट महसूस हुई है? जी, ये तो खवातीन के साथ तो मेरा ख्याल है मुसलसल ये अमल रहता ही है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं बहुत वैसे लिखते अगर तो शुरू कर दिया है तो फिर तो कोई रुकावट कभी आई नहीं, लेकिन कलम उठाते ही जब भी उठाती हूँ, जब लिखना प्लॉट बहुत ज्यादा फोर्स करे, तंग करे, फिर या कोई मिसरा, फिर लिख लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ। ये मेरी डायरीज हैं, 3-4 डायरीज हैं, कुछ रैक में पड़ी तो लिख लेती हूँ, नोट्स ले लेती हूँ। लेकिन ये है कि फिर मतलब अगर आप नसर लिख रहे हैं तो फिर आपके जब लिख रहे हैं तो फिर रुकावट नहीं आती कोई, क्योंकि आप पूरा प्लॉट, पूरी कहानी आप बुन के उसको फिर शुरू करते हैं ना लिखना। तो ये है कि मेरी कोशिश यही रही है कि जब तक लिखना ना पड़े तो मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि और इतनी जिम्मेदारियां हैं, इतने काम हैं। अब आके एहसास होता है कि पढ़ा बहुत कम है, बहुत पढ़ना चाहिए था, और हर अहद के लोगों को तो जरूर, नुमाइंदा लोगों को तो जरूर पढ़ना चाहिए था। मुझे अभी भी कमी महसूस होती है, क्योंकि फिर छोटी उम्र में शादी हुई, BA MA मैंने बाद में किया, फिर बहुत बचपन से लिखती रही, फिर बाद में भी लिखती रही, घर में किताबें मैंने बताया कि बाद में शाया हुई। लेकिन खवातीन के लिए मुश्किल होता है लिखना, जिनका जो मतलब प्रोफेशनल भी ना हो, या मतलब अपडेट रहना चाहिए इसमें, ये बिल्कुल उससे। लेकिन मुझे ये फायदा है घर से ही यूं मिला कि मुझे ससुराल पढ़ा लिखा इल्मी अदबी खानदान मिला। ये है 1857 में जो गवर्नर पंजाब थे, मेरे जो हस्बैंड हैं, वो उनकी 5वीं पुश्त हैं। उनके जो चीफ सेक्रेटरी थे मौलवी सैयद रजब अली सादाते जगराऊं, तो ये लोग, इनका जो पूरा खानदान है, आप ये समझ लें कि 24 घंटे की यूनिवर्सिटी, मीर अनीस पे अथॉरिटी, गालिब पे, फिर इनकी इल्मी अदबी खिदमात बहुत हैं, मौलाना आजाद के हवाले से, तो ये बड़ा एक इनका नाम है। तो वो उन लोगों ने मुझे ग्रूमिंग की मेरी, क्योंकि मैं तो लिखती थी अपने एक अंदाज में, लेकिन इनकी तरफ से मुझे सपोर्ट बहुत मिली हर हवाले से, नसर में भी, शायरी में भी। मेरे नकाद घर के यही लोग रहे। जी, आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही? जी, आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी जी आई। मेरा नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। जी मैम, आप बोले। जी, बोले आप। जी जी बिल्कुल। मुझे घर में ही नकाद मिल गए, शायरी के हवाले से भी, इन लॉज की शक्ल में, और नसर में भी, क्योंकि वो एक इल्मी अदबी एक खानदान है, और वो नस्ल दर नस्ल जो है उनका यही है कि छोटे बच्चों को बांगे दरा और गालिब इकबाल का कलाम, मीर अनीस का कलाम लोरियों में सुनाना, और वो रिवायत आज भी जारी है इस जमाने में भी। ये एक वाहिद खानदान है मेरा ख्याल है इतना के जो सीना बसीना ये अपनी रिवायत को आज तक लेके चल रहे हैं। हालांकि वो जहां पर अब वो नहीं रहा, लेकिन ये बेपरवाह हैं सब दुनिया से, और ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को वही रिवायत, वही इल्म अदब कलम किताब से दोस्ती रहे। मेरे 2 बेटे शायर हैं, और बॉर्न शायर हैं, या जाहिर हस्बैंड भी हैं शायर। मेरी नंदे, मतलब ये शबनम शकील वाला फैमिली है ना, तो वो इनके रगों में है। तो वो मुझे तो उस्ताद घर में ही है सब मिले। जो एक सतही था, जो गहराई नहीं थी, वो इन लोगों से भी आ गई। जी जी,
काफी सारी यादें। इस मायने में मैं कहूंगी कि आप खुश नसीब रही, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में जो हमारा माहौल है उसमें शादी के बाद जो होता है वो सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, या आपसे ये तवक्को होती है कि आप सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल जाएं। तो अगर आपको शादी के बाद उस घर में आपको ये सब चीजें मिली हैं तो वो एक खुशनसीबी है जाहिर तौर पे। एक सवाल मैं आपसे और करूंगी, एक राइटर के तौर पे आपने कहा नहीं होता ना दिल की बातें कोई बर्दाश्त नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो माहौल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे जानना ये चाहती हूँ कि अभी आपने ये बोला कि जब कोई प्लॉट होता है, कोई वन लाइनर होता है, कोई ख्याल होता है, आप उसे नोट कर लेती हूँ और आपके पास बहुत सारी डायरीज हैं, और मुझे उम्मीद है कि उन डायरीज में जैसे बीज हम इकट्ठा करते हैं एक शीशी के अंदर, आपने उन डायरीज में बहुत सारे बीज इकट्ठा कर रखे हैं जिनको जहां भी लगाओ तो एक खूबसूरत पौधा निकलेगा, पेड़ निकलेगा। मेरा सवाल ये है कि ये प्लॉट्स जो होते हैं, जो कि मैं भी एक राइटर हूँ और मैं कभी कभी इस बात में सोच में डूब जाती हूँ कि कुछ अगर नया लिखना है तो कैसे प्लॉट कैसे लाया जाए, कहाँ से वो मिलेगा। अब बाजार में तो मिल नहीं रहा है कि हम गए और खरीद के ले आए प्लॉट वो दिमाग के अंदर कहीं आता है। हाँ, तो ये कैसे आप अपने प्लॉट्स कैसे लेती हैं, कहाँ से मिलते हैं, और सबसे ज्यादा क्या मुतासिर करता है आपको एक प्लॉट के तौर पे कहानी में? अब देखिए, क्लासिक्स को पढ़ा मैंने, एफए में भी उर्दू लिटरेचर, बीए में भी और एमए में भी लिटरेचर ही रखा। अब क्लासिक्स को इतना पढ़ा, अब वही बात आ जाती कि आपका लाशऊर में कौन जगह बना लेता है। उसमें मैंने जब देखा अपना ये जो अफसाने हैं इनको पढ़ के, उसको खुद भी तनकीदी जायजा अक्सर जब पढ़ती हूँ तो एक नया ही अंदाज सामने आता है। तो उसमें यहाँ पर अब एक अफसाने की मैं मिसाल देती हूँ कि घर से वतन तक। मेरी सास अक्सर ये कहा करती थी कि मेरा घर वो है, वतन ये है। वो घर लुटाकर वतन में जीना लगा, फिर किसी अंजुमन में जीना लगा। तो बस उनका वो हाल था। तो वो उनकी कहानियां, उनकी बातें मैं बहुत कुरेदती थी। मैं बुजुर्गों के पास बहुत बैठती हूँ और मैं बहुत कुरेदती हूँ। मैं बच्चों के पास बहुत बैठती हूँ, हर उम्र में के दोस्त बन जाते हैं, मेल फीमेल, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी रही तो वो मेल फीमेल वाला रेडियो पे भी जाया करती थी, तो वो एक खत्म हो गया। तो मैं सबसे बहुत कुछ सीखती हूँ, कुरेदती हूँ लोगों को, तो मैं उनकी बातें लेती रही। उसके बाद फिर जब वो बताया करती थी कि हम जैसे मशरकी पंजाब एक ही रात में तकसीम हो गया और हम ट्रक पे बैठे और हम पाकिस्तान आए और रास्ते में मेरे भाई को उसी के दोस्त ने शहीद कर दिया और वो हमारे सामने तड़पते रहे और हमारा ट्रक रवाना हो गया। तो ये घर से वतन तक का मेरा अफसाना। अब उसको मैंने जो एक लाइन देके एंड में सेक्टेरियन से जोड़ा। अब ये तख्लीकी अमल को मैंने अपने काम में इस तरह से लेके आई कि वो खाला अपनी बहू को बता रही हैं सब बातें, सब दुख, अपनी कहानी। तो और ईद का दिन है और वो कह रही हैं कि आप ये सफेद कपड़े ना पहने, ये रंगीन लें और सर को भी डाई, बालों को भी डाई करें आप अपने। और वो कह रही हैं कि नहीं, जब से मेरा भाई शहीद हुआ है तो मैं जब से ये मेरा बस सांस ले रही हूँ और मैं जिंदा नहीं हूँ असल में, तो मेरा दिल नहीं मानता। तो उसको मैंने कहा है कि उसका बेटा ईद की नमाज पढ़ने गया है और घर में फोन की घंटी बज रही है और वो जब बहू उठा रही है तो वो हॉस्पिटल का नाम पूछ रही है, तो खाला पूछ रही है किसका फोन है, तो वो कह रही हैं कि इस तरह से अली वहाँ धमाका हो गया मस्जिद में और अली के लिए वो कह रहे हैं कि वो जख्मी हुए हैं। तो खाला वही गिर जाती हैं कि घर से वतन तक आज भी वही लाशें, वही गोलियां। यानी एक भाई शहीद हुआ और आगे उनका बेटा भी। तो अब ये देखें कि इसके पस मंजर में आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आप जिस हवाले से जितना जितना सोचे कि कितने सालों बाद भी आज एक औरत का दुख जहां से शुरू हुआ आज भी वही न्यूक्लियस की वही ट्रेजेडी। तो ये तकनीकी अमल है। मैं एंड में वन लाइन देती हूँ सारा करके, आखिरी पैराग्राफ मेरे अफसानों का वो सारा जो होता है एक तख्लीकी अमल होते हैं। बहुत खूब। और मुझे लगता है शहनाज मैम कि जैसा हम लोग हर बार कहते हैं और हर इंटरव्यू में इरफान साहब भी कहते हैं कि एक शायर को, अदीब को
राइटर को हसास होना चाहिए ताकि वो अपना ही दर्द महसूस ना करे, वो सारे आलम का दर्द महसूस कर पाए, माजी में जो हो चुका है उसको भी महसूस कर पाए, तब वो लिख पाएगा कोई चीज। और वो आपने बताया कि आपके अंदर भी वही प्रोसीजर चलता है। एक और बहुत खूबसूरत चीज मुझे पूछनी है, लेकिन इरफान साहब आए हैं सामने तो जाहिर है कि जब वो आते हैं तो कुछ अलग बात कुछ होती है, तो मैं चाहती हूँ कि वो कहें अपनी बात। नहीं, पहले तो ये बीच में कहीं थोड़ा सा नेटवर्क मेरे ख्याल कुछ लगता है हल्का सा कहीं खराब हुआ था। बहरहाल मलिक निजामी साहब आपको सलाम। मेरा खराब हुआ था जी। अमरजीत कौर नैयर साहिबा, आफ्ताब मीर साहब हैं, जाजिब अली साहब हैं, रियाज गिलानी जी हैं, नूर जमशेदपुरी रियाज यानी सऊदी अरब से हैं। ये तमाम तर लोग जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं, सलाम और दुआ से आपको नवाज रहे हैं। अब्दुल मजीद निजामी साहब भी हैं। अफसाने की बात की आपने, तो अफसाना जहां इख्तिताम पर होता है और आपने उसको वन लाइन मतलब करार दिया कि मैं अपना अफसाना वहां इख्तिताम करती हूँ कि जहां एक तजस्सुस भी बरकरार रहे और कहानी भी खत्म हो जाए और एक नई कहानी का जन्म भी ऐसा लगे कि कुछ हो सकता है, एक फिक्र था। जी, एक फिक्र आमेज, एक फिक्र अंगेज एक यानी कहानी छोड़ देना, ये बड़ी बात है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे हम कहते हैं नावल भी आप लिख रही हैं, नावल से ही जन्म लिया अगरचे अफसाना ने, तो अफसाना उससे मुख्तसर हो गया। आज मुख्तसर तरीन एक सिन्फ जिसे हम अफसानचा कह रहे हैं, तो आपकी कहानियों का जो यानी मैं कहूँगा इख्तितामिया है, वो अफसानचे की सूरत में भी नमूदार हो सकता है। तो क्या कभी अफसानचे लिखे हैं? जी, मैंने आपको PDF भेजा, व्हाट्सएप किया था, उसमें आप पढ़िए। तो वैसे दास्तान से अफसाना आया, अफसाने के बाद नावल 18वीं सदी में लिखा गया इंग्लैंड में। तो पहले नावल नहीं है। दूसरा ये कि जो मतलब दास्तान से हम कहते हैं ना कि दास्तान से नावल आया, नावल से अफसाना आया। अफसाना जी, अफसाने से फिर मेरा ख्याल है कि नावल आया। अफसाना तो दास्तान अफसाना बस ये थोड़ा सा ही एक शॉर्ट स्टोरी की बात करते हैं ना, मैं उस हवाले से कह रहा हूँ। जब हम लफ्ज पे जाएंगे तो वो तो कहानी किससे वो बड़ा एक तवील वो चैप्टर खुल जाएगा। मेरे अफसाने जो है फिक्शन के ये रूप है ना, फिक्शन जो है आज तो हम सारे अदब को फिक्शन का नाम देते हैं। यानी फिक्शन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसमें यानी वो जो टेल्स हैं हमारी, जो दास्तानें हैं, उन्हीं दास्तानों से जो हम नावल लेकर आए, तो नावल से हम और इख्तिसार पे जब हम गए तो शॉर्ट स्टोरी आई। तो आज मिनी स्टोरी के नाम को लेके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने कुछ ऐसी मुख्तसर कहानियां लिखी हैं? कुछ लोगों ने यानी इसको नाम दिया है 100 लफ्जी कहानी, किसी ने कहा है 10 सतरी कहानी। तो क्या कुछ ऐसे तजर्बे भी हुए? नहीं, मैं कहानियों लिखे हैं अफसानवी रंग में ही लिखती हूँ, क्योंकि अफसाना जो है उसमें एक तख्लीक कार का गैर शऊरी तौर पर एक लतीफ अंदाज में एक फिक्र को बांट के आगे निकल जाता है, शुगर कोटेड अंदाज में, जो कि लेक्चर नहीं लगता, जो नारा नहीं लगता। तो वो मेरे अफसाने जो है, मैंने कहा आपसे कि 2-4 रवायती हैं, बाकी सारे मेरे अफसानचे ही हैं, जिसमें मैं समझती हूँ फी ज़माना के फिक्शन का हक अदा हो जाए और फन भी ना मुतासिर हो और फिक्र भी डिलीवर हो जाए और आपका कैथारसिस भी हो जाए। अब ये आसेब है, जब सेक्टेरियन था बहुत ज्यादा, तो उसमें मैं कितनी कहानियां लिखती और कैसे लिखती। बस एक दिन बहुत ज्यादा दिल घबराया, तो ये 2 सफ़ात का है आसेब के नाम से, ये 2 सफ़ात में मैंने आसेब यानी डर, खौफ। हमारे कुछ एक कमेंट आया है जहलम त्रिवेदी जी का, ये गालबन बंगाल से हैं, तो लिख रही हैं कि ये जो बातें हो रही हैं बहुत उनको भी लुत्फ आ रहा है, खूबसूरत बातें उनको भी ये समझ आ रही हैं, और हम बहुत जल्द चाहेंगे कि बंगाली भी कोई आके हमारी उर्दू की बात करे। तो जैलम त्रिवेदी जी के हवाले से बात करता चलूं, ये इंग्लिश में लिखती हैं, तो मैं आपके हवाले से यहाँ ये पैगाम दिलाना चाहूँगा, ये जो आपने आसेब कहा है 2 यानी सफ़ों पे ये मुश्तमिल है, तो अगर आप इसे पढ़ पाएं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा सा फ़नी तजर्बा भी हो जाएगा। कुछ लोग अगर इसे
समझना चाहेंगे अफसाना क्या है, तो वो एक अच्छी मिसाल हो सकती है। जी, ये अफसानचा है आसेब। बारिश का हर कतरा मुझ पर एक नया उकदा क्यों खोल रहा है, हर सू बिखरे फूल मुंह क्यों चढ़ा रहे हैं। ये खिला गुलाब जिसकी खुशबू मेरे दिलो दिमाग को मुअत्तर करती थी, आज नागवार क्यों महसूस हो रही है। चमन में बिखरे फूलों की खुशबू मेरे वजूद में क्यों नहीं उतर रही। ये हवाएं, ये ठंडी हवाएं जहर आलूद क्यों महसूस हो रही हैं। ये सब क्या है, क्या है, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। मैंने अपने हाथ को जोर से हिलाया, झटका, पलकें झपकी, यही सपना तो नहीं, कहीं सपना तो नहीं। मैं तो जागते में ये सब महसूस कर रही हूँ। वैसे सपने तो किसी वक्त भी देखे जा सकते हैं, बस इनमें जिंदगी हो, इनका मुतहर्रिक होना जरूरी है, एक मुतहर्रिक सोच। मैं घबराकर बारिश से बचने के लिए घने पीपल के दरख्त तले खड़ी हो गई, मगर शजर तले भी मुझे चैन न आया और बारिश का हर कतरा एक पत्थर की मानित महसूस हो रहा था। फाख्ता की सुरीली आवाज जिसको सुनने के लिए मैं बेचैन रहती थी, आज वही मंडेर पर बैठी मुझे बदसूरत और उसकी आवाज मेरी समातों को भद्दी क्यों महसूस होने लगी। बारिश में दौड़ते बच्चे, कागज की कश्तियां बहाते ये बच्चे, ये मंजर मुझे वहशत ज़दा क्यों कर रहा है। ये सब मनाजिर एक सपना है या वो एक सपना था। मेरी सोच क्यों उलझ गई, या वक्त ने भेस बदल लिया। वक्त बदल गया, आज हर लम्हा सदियों पर मुहीत क्यों हो गया। घर की मुंडेर पर ये काले कव्वे उड़ा दो, उड़ा दिया करो, ये मनहूस होते हैं, दादी कहा करती थी। लेकिन मैं यही सोचती रही, शायद ये फाख्ता से सुलह करने आए हों। शजर तले अपने कांपते वजूद को नॉर्मल करने के लिए चंद कदम आगे बढ़ी तो एक और नया मंजर मुझे हैरान करने के लिए मुंतजिर था। ये घास हरे रंग का होता था, मगर ये मुझे लाल क्यों दिखाई दे रहा है। क्या ये सब मेरी नजरों का धोखा है या फिर एक डरावना ख्वाब या आसेब। नहीं नहीं, दिल धड़कता है, दिल तो धड़कना तो जिंदा होने की इलामत है। मैं जिंदा हूँ। एक जोरदार झोंके ने मेरे सर से मेरी चादर भी उड़ा ली। उफ खुदाया, ये मेरा वजूद, जिंदा वजूद सब पत्थर की मानित क्यों हो गया। चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर चीज, हर मंजर, साकत, ये सब सोचते सोचते जैसे शायद मैं भी पत्थर की हो गई या फिर शायद मेरी आंखें ही पथरा गई। ये जी बहुत ही खूबसूरत ये जो भी आपने हिस्सा हमें सुनाया वो बेहद खूबसूरत है और मुझे लगा कि बड़ी ही कमाल की मंजरकशी की गई है। और बहुत मुश्किल होता है शहनाज मैम कि आप जो कुछ महसूस कर रहे हैं उसे हूबहू हरफों में, अल्फाज में उतार देना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपने ये किया। जी बिल्कुल, और आप वो कर सकती हैं। मैं बार बार जब भी मैं किसी राइटर से बात करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आपके अंदर ये सलाहियत है, ऊपर वाले ने ये बख्शा है, तो बहुत बड़ी नेमत है कि आप दिल की बात को अपने हरूफ में, अपने अल्फाज में बयां कर पाएं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, सवाल जानने के लिए आपसे। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आप बुजुर्गों के पास अधिक बैठती हैं और बच्चों के पास बैठना पसंद है आपको। तो ये कुछ जैसा मुझे लगता है और हम सब जानते हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं एक तरह से दरख्त होते हैं और बच्चे फूल जैसे होते हैं। तो दरख्तों के साए में बैठना और फूलों के पास बैठना, तो उधर साया मिलता है, इधर खुशबू मिलती है, हर तरह से हमारा नफा ही होता है। तो इन सारी चीजों के बीच में आपने रेडियो और टीवी के लिए भी लिखा है, ऐसा मैंने आपसे सुना। तो ये एक जो अलग मीडियम है रेडियो और टीवी का, इससे आपका रिश्ता कैसे बना और आपने उस प्लेटफॉर्म से किस तरह से खुद को एक्सप्रेस किया और क्या क्या लिखा, ये हम जानना चाहते हैं। जी, दादा जान का घर था अलॉटमेंट कैंट सदर बाजार मुल्तान में।
तो वो करीबी रेडियो स्टेशन था, तो हम अहाता जगन्नाथ में रहा करते थे, तो उसी अहाते के सब बच्चे हम इकट्ठे होकर हमारे मेरा ख्याल है 1 या 2 में थी, तो रेडियो स्टेशन जब तामीर हुई बिल्डिंग मुल्तान में, तो बहुत बड़ी तरक्की समझी जाती थी, तो हम लोग वहाँ बच्चों के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सब जाया करते थे, और मुन्नी बाजी होती थी, और वो हम बच्चे से कोई लतीफा सुना रहा है, कोई अकवाले जरी, और इसी तरह से मैं टोट बटोट सुनाया करती थी, सूफी तबस्सुम की नज़में, या मर्द मुजाहिद, जरा सी बड़ी हुई तो 3-4 में मर्द मुजाहिद नज़्म, फिर तकरीरें वो छोटी छोटी वहाँ पढ़नी, मतलब लाजमी था कि हिस्सा जरूर लेना है। बकअप करते थे घर वाले, और एक माहौल था, एक और तो कोई एक्टिविटीज बच्चों के लिए खेल के अलावा थी नहीं, तो यही एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी, तो वो उसी तरह शामिल होते रहे। रेडियो से ताल्लुक जुड़ा, फिर वहीं पर मेरी जो उस्ताद थी समर बानो हाशमी साहिबा, वो बहुत अच्छी शायरा भी थी, अफसाना निगार भी थी, मेरी स्कूल की उस्ताद भी थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल गर्ल्स गुलगश्त कॉलोनी में, वो 6ठी से 10वीं तक उन्होंने पढ़ाया, और वो फिर वही मुझे बैतबाजी के लिए भी तैयार करवाती। घर आके शाम को हमसाए भी थे, वो इर्द गिर्द प्रोफेसरों की बस्ती में मैं रही हूँ घर में भी, तो वही फिर घर में भी उनका मुझे बहुत मिलना। उन्होंने कहा कि ये मैं बीमार हूँ, ये 15 रोजा अदबी प्रोग्राम है, ये मेरी तरफ से आप अफसाना पढ़ाएं, मेरा रिकॉर्डिंग करवा के आइए। तो हालांकि और बहुत से उनकी थी शागिर्द, लेकिन उन्होंने मुझे कहा, मैं जाके रिकॉर्ड करवा के आई। फिर मुझे हुआ, जब मैंने अफसाना लिखा तो मुझे मालूम हुआ कि इस प्रोग्राम में मैं भी शामिल हुआ करूं। इस तरह से रास्ते बनते गए, और मैं वहां अपना हिस्सा डालती गई। तो रेडियो से यूं मुंसलिक है, अब जाते हैं, अभी भी जाती हूँ, अभी भी वो मुझे, मैं वहां खुद को एक बच्ची महसूस करती हूँ, समाजी हवालों से जाती हूँ या गेस्ट जाती हूँ रेडियो से, तो अभी भी वो मुझे बुलाते हैं, रिकॉर्ड व्हाट्सएप करके कि आप भेज दीजिए, चीजें शामिल रखते हैं। अखबारात में भी इसी तरह है सूरत हाल। तो एक अपनी बट्टी को का हक तो अदा करना है। मुल्तान ने मुझे बहुत ग्रूम किया, तो वो तो है। क्या बात है। और अल्लाह इतनी ताकत सबको बख्शे, इतनी नियत सबको बख्शे कि वो अपना हक अदा कर पाए, क्योंकि जहाँ जहाँ से हम सीखते हैं, जहाँ जहाँ से हम लेते हैं, उनको वापस लौटाने लायक बन जाएं। इससे ये कामयाबी होती है जिंदगी की, कि जिनसे आपने लिया है आप कभी उनको देने वापस करने लायक बन जाए। शहनाज नकवी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें देख के कोई और लिखेगा, हमने जिनको देख कर हिम्मत हौसला हासिल किया, हमें देख के और बच्चियां आगे आएंगी, खवातीन इसी तरह। बेशक शमा से शमा जलती है, रोशनी से रोशनी आगे बढ़ती है। और शहनाज नकवी मैम, मैं प्रोग्राम के आखिर में, हमारा प्रोग्राम का वक्त जो है मुकर्रर वो खत्म होने को है, तो एक सवाल जो हम हर बार हर शाम करते हैं अपने हर मेहमान से, कि उर्दू की आप खिदमत करती रही हैं, उर्दू ही आपका जरिया रहा है खुद को अया करने का, बयां करने का, अपनी बात कहने का। तो आज के, अगर मैं आज आपसे पूछूं कि उर्दू के को लेकर जो सारी दुनिया में हंगामा है कि ये जुबान कितने लोग सीख रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, कितना आगे बढ़ रही है, कितना पीछे छूट रही है, तो आप इसके मुस्तकबिल से आपका की क्या तवक्को है, आप क्या सोचती हैं कि आगे उर्दू का क्या मुस्तकबिल है, और कोई मैसेज जो उर्दू वालों को आप देना चाहें? क्योंकि कभी कभी हम अपनी जबान से ही दूर जाने को फैशन मानते हैं, बड़ी बात मानते हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम कोई दूसरी जबान पढ़ रहे हैं, और हम उर्दू में नहीं पढ़ते लिखते हैं, खासतौर पे हिंदुस्तान में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दूसरी जबानें ज्यादा बोली जाती हैं, लिखी जाती हैं। तो आपका क्या पैगाम होगा उनके लिए, और आप खुद ये क्या समझती हैं कि उर्दू का क्या मुस्तकबिल है? उर्दू जो है, जहां भी उर्दू बोली जा रही है दुनिया में, मेरा ख्याल है कि उर्दू अब ज्यादा बोली जा रही है। ये कहना गलत है कि इंग्लिश एक जरूरत है, लेकिन घरों में और उर्दू लिटरेचर पढ़ा भी जा रहा है, क्योंकि जाहिर है, मैंने बताया कि हमारी पोस्टिंग्स रही हैं सारे पाकिस्तान में, हर सूबे में, छोटे बड़े शहरों में, तो मैंने यही देखा है कि बुक रैक्स हैं, लोग पढ़कर डिस्कस भी करते हैं, और बच्चों में भी ये चीजें हैं। उर्दू को कभी भी कोई खतरा नहीं होगा, उर्दू की बका
उर्दू खुद अपनी बका की ज़ामिन है। और अब हमारे बच्चे इंजीनियर हैं, बेशक बाहर से भी पढ़ के आए हैं, उनको बहुत ज़बानें आ गई हैं, लेकिन यकीन जानिए कि उर्दू और उर्दू किताब से उनको जो सुकून मिलता है वो कहते हैं हमें कहीं से भी नहीं। तो उर्दू ये है कि वुसअत इख्तियार करेगी ये ज़बान, इसके लिए थोड़ा सा हमें भी देखिए ऑलरेडी उसमें कितनी ज़बानें मिलके वो उर्दू ज़बान एक है, उसमें अगर थोड़ा सा वक्त का तकाजा है, ये मैं एक नया इजाफा कर रही हूँ कि अगर उसमें वक्त के तकाजे में हर लफ्ज की एक तासीर होती है और उस तासीर का एक टाइम फ्रेम होता है, अगर गुंजाइश इम्पैक्ट तासर नहीं एक लफ्ज दे रहा, उसकी जगह पर अब देखिए कि इम्पैक्ट मैंने यूज किया है इंग्लिश लफ्ज, साथ ही मैंने कहा कि अगर वो तासुर, तो ये इसी तरह से वो लफ्ज ना खुद अपनी जगह बना रहे होते हैं। उसमें अगर इंग्लिश का लफ्ज आ रहा है तो हमें कोई खतरा नहीं महसूस करना चाहिए, वो उसको आने दें। उर्दू तो एक माँ की तरह है, वो सबको संभालेगी अपनी झोली में। तो जब ग्लोबल विलेज बना है ना, उसमें मुख्तलिफ जबानों के नए नए लफ्ज शामिल होने दें। उर्दू बेसिकली वही रहेगी जो है, संस्कृत और ये तर्किश और उर्दू हमारी ये सारी जबानें, ये उसमें थोड़ा सा इंग्लिश अगर आ रही है, कल को और भी कुछ इजाफे होंगे जो मैं नहीं कहना चाह रही अल्फाज के, जबानों के, मुख्तलिफ कंट्रीज के, तो वो बेसिकली वो उर्दू ही कहलाएगी और उर्दू ही है। बिल्कुल। शहनाज मैम, आपने बहुत ही खुलेपन से, बड़े दिल से, फराग दिली से मैं कहूँगी इस बात को माना, और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों तक आपका ये पैगाम पहुँचे कि जुबान को कोई खतरा नहीं है। आप बोलते रहें, अपने हिस्से का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप करते रहें, लिखते रहें, बोलते रहें, जहाँ तक जुबान को बढ़ा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। अपने घर में जितना अपने बच्चों को आप सिखा सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। और कोई अगर अलग जुबान का कोई लफ्ज आता है तो उसे एक्सेप्ट करें, इससे बड़ा ही होगा हमारा खानदान, छोटा नहीं होगा। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल जी, बस मैंने कहा एक गजल के चंद अशार आपको। बिल्कुल हम प्रोग्राम को ऐसे ही खत्म करेंगे आपकी गजल के साथ। तो मैं अपने सारे नाजरीन की ओर से आपसे गुजारिश भी करूंगी कि आप एक गजल पेश करें प्रोग्राम को खत्म करने से पहले। जी मैम। सभी मौसम तेरे आने से जैसे साथ आते हैं, सभी मौसम तेरे आने से जैसे साथ आते हैं, मचल जाता है दिल और चांद तारे मुस्कुराते हैं। कभी जब साथ हो तेरा हवाएं गीत गाती हैं, कभी जब साथ हो तेरा हवाएं गीत गाती हैं, बिखर जाती है एक खुशबू तो हम दीपक जलाते हैं। तेरी आवाज सुनकर सोचते हैं हम यही अक्सर, तेरी आवाज सुनकर सोचते हैं हम यही अक्सर, तेरी आवाज सुनकर किस लिए हम मुस्कुराते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। कभी बोझल सा हो जाता है ये दिल तेरी यादों में, कभी बोझल सा हो जाता है ये दिल तेरी यादों में, कभी में चिरागों को जलाते हैं, कभी हम तेरे रास्ते में चिरागों को जलाते हैं। वही दिन जब हमें कोई परेशानी ना होती थी, वही दिन जब हमें कोई परेशानी ना होती थी, हमें तो नाज बचपन के वही दिन याद आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही जी, बहुत खूब शहनाज मैम। और आपको मैं एक बात जरूर बता दूं कि आपकी गजल, जैसे कहते हैं ना कि आदमी कहता कुछ और है करता कुछ और है, मगर आपकी गजल इस बात की सनद है कि आप जो कह रही हैं उसको आप मानती भी हैं। आपकी गजल में चिराग भी आता है तो दीपक भी आता है। आपने हर लफ्ज को उतनी खूबसूरती और उतनी प्यार से अपनाया है और उससे कहीं भी उसके मायने में फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हमारी दावत कबूल की और पाकिस्तान से आप हमसे मुखातिब हुई हैं। हमारा प्रोग्राम अब खत्म होने ही वाला है, हो रहा है। मैं तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आप
کو शुक्रिया अदा करूंगी, अपनी ओर से शुक्रिया अदा करूंगी। और मेरे लिए तो ये ज़ाती तजर्बा होता है जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, कुछ सीखने का, कुछ समझने का। तो तहरीक बकाए उर्दू की ओर से प्रोफेसर इरफान आरिफ साहब की ओर से जो सदर हैं हमारे, और हमारी इस पूरी टीम की ओर से मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी। और अगर इरफान साहब जुड़ सकते हैं, मैं देख रही हूँ। जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शामिल किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम नाजरीन की जानिब से, तमाम सामीन की जानिब से, पूरी तहरीक की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शुक्रिया अदा करता हूँ प्रतिमा साहिबा का भी, कि जिन्होंने इतना खूबसूरत निज़ामत के जो मैं फ़राइज़ हैं वो अंजाम दिए, और आपने बेहतरीन कलाम सुनाया और इतनी खूबसूरत बातें सुनाई। उसके लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करते हुए इंशाअल्लाह फिर कभी बुलाएंगे तो याद रखिएगा दुआओं में। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, शबा खैर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।